السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے بھکارن، جسے خورشید شفق نے لکھا ہے۔ ارے حمیدہ، میری بات مان لے، تو عیش کرے گی عیش۔ ارے 16 برس کی تھی جب تو نے بھیک کا دانا شروع کیا تھا، اسی دانے سے آج تو 22 برس کی ہوئی ہے۔ کیا چھوڑا تھا تیرے مزدور باپ نے تیرے لیے؟ ایک پھٹا بوریا اور ایک ٹوٹی چارپائی۔ ارے کمبخت، زندگی اس سے نہیں گزرتی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی چاہیے، روٹی۔ چاچی اکبری اسے سمجھاتی ہوئی بولی تو وہ خاموشی سے ان کا منہ تکنے لگی۔ ارے اس کمبخت کا نام بھی تو دیکھو، کیا شہزادیوں جیسا نام رکھا ہے۔ ہاں، حمیدہ، چاچا فضلو نے منہ بگاڑ کر کہا تو وہ اپنی جگہ اور سمٹ اور سہم کر بیٹھ گئی۔ چاچا جب بولتا تو اس کی سرخ سرخ آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آتی۔ وہ پانی سے بھرا ایلومینیم کا گلاس گٹاگٹ خالی کرتے ہی گلاس کو ایک جانب پھینک کر چھگی سے باہر نکل گیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے پاؤں بوریے پر سیدھے کر دیے اور لکڑی کے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی اور دل سے اللہ کو پکارنے لگی۔ میرے مالک، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یہ لوگ تو مجھے عزت سے جینے نہیں دیں گے۔ میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں کسی کے سامنے؟ میں بھانت بھانت کے لوگوں کا سامنا آخر کیسے کروں؟ زمانے کی ہوس بھری نظریں میرے وجود کے آر پار ہوں گی، کیسے برداشت کروں گی میں؟ میری بات غور سے سن حمیدہ، دیکھ، محنت صرف وہ نہیں ہے جو تیرا باپ کرتا تھا، محنت یہ بھی ہے۔ تیز دھوپ اور گرم لوئیں بدن میں آگ بھر دیتی ہے۔ ایسے میں بازاروں میں اور ریلوے پلیٹ فارم پر میں اور تیرے چاچا کہاں نہیں جاتے؟ چاچی اکبری کی آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تو خود سوچ حمیدہ، تو اب خیر سے جوان جہان ہے، اب ہم تیرا بوجھ کیسے اٹھائیں؟ اب تو خیر سے تیرا بیاہ بھی کرنا باقی ہے۔ جہیز کی رسم امیروں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ غریبوں میں بھی ہے۔ سبھی لوگ اپنی اپنی حیثیت جیسا بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ تیرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم ہی تیرے بڑے ہیں، تجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے۔ اس جھگی سے تیرے چاچا نے کئی جگہ بات پکی کرنے کی کوشش کی لیکن سب نے انکار کر دیا۔ جانتی ہے کیوں؟ بھلا کیا کمی ہے تجھ میں؟ اللہ نے چاند سی صورت دی ہے تجھے، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے، لیکن غربت اور بھوک میں اچھی صورت کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ یہ سب چونچلے تو بس امیروں کے ہیں، ساری برادری جانتی ہے کہ تو دھندے پر نہیں جاتی، اسی لیے تو کوئی تجھ سے 2 بول پڑھانے کو تیار نہیں۔ وہ دینو ہے نا، ارے وہی کمرو کا لڑکا جس کی دونوں ٹانگیں ٹرک نے کچل دی تھی، ارے بدنصیب، اس نے بھی تجھ سے 2 بول پڑھانے سے منع کر دیا۔ پاؤں نہیں ہے اس کے، لیکن دن میں ہزاروں کماتا ہے۔ تیرے بابا نے بھی محنت مزدوری سے بھی اتنے نہیں کمائے عمر بھر جتنا وہ ایک ایک دن کے دھندے میں کماتا ہے۔ میری بات کا برا نہ مان، بس اب تو بھی یہ کام شروع کر ہی دے، تو کمائے گی تو کمائی بھی چوگنی ہو جائے گی ہماری۔ چاچی اکبری نے اسے تفصیل سمجھاتے ہوئے کہا، میرے صرف ایک کے کمانے سے کمائی چوگنی کیسے ہو جائے گی؟ اس نے پہلی بار لب کھولے تو اس کی آنکھوں میں حیرت تیر رہی تھی۔ چاچی اکبری اس کو قریب گھسیٹتی ہوئی قدرے رازداری اور لاڈ سے بولی، ارے بھولی، ابھی تو بہت چھوٹی ہے۔ تیرا بابا ٹھیک کہتا تھا کہ بخت بہت سمجھدار ہے، 8 کتابیں پڑھ کر بھی گوار ہی رہی۔ سن، کمائی کیسے چوکنی نہیں ہوگی؟ رحمتے کی بیٹی ریلوے پل پر جاتی اور نوٹوں سے مٹھیاں بھر لاتی ہے، کمبخت کی شکل و صورت بھی بس یوں ہی ہے۔ ارے پھر بھی کتنا لاتی ہے گھر میں، رحمتے کے عیش کر دیے ہیں اس نے۔ کہاں وہ اور کہاں تو؟ ارے تیری صورت تو شہزادیوں سے بھی اچھی ہے، تیرے بابا نے تیرا نام حمیدہ یوں ہی نہیں رکھ دیا، تیری صورت پیاری تھی تو تیرا نام بھی پیارا سا رکھا۔ چاچی نے لاڈ سے سمجھایا، اگر تو دھندے پر جائے تو ایمان سے دینے والے جیبیں خالی کر دے۔ کتنی سستی اور گھٹیا بات کہہ دی تھی چاچی نے،
کتنا گرا دیا تھا اسے اس کے مقام سے۔ وہ اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ در در پھرتی اور اس کے عوض چند چھن چھن کرتے سکے اسے اپنے کشکول میں پڑے نظر آتے۔ اگر دینے والے کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتی تو ان سکوں کی جگہ کڑکڑاتے ہوئے نوٹ بھی لے سکتی تھی۔ اسے یہ سوچ کر کراہت محسوس ہوئی۔ کئی بار وہ تصور میں خود کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتی اور طرح طرح کی نظروں کو اپنے تعاقب میں دیکھتی تو گھبرا کر بے اختیار آنکھیں کھول دیتی۔ سر درد سے پھٹنے لگتا۔ بابا کی موت کے بعد وہ کس قیامت سے دو چار تھی۔ ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسے اپنے وجود سے بھی گھن محسوس ہوتی، اور جو ہی اپنے جسم پر نظر پڑتی اسے یوں لگتا جیسے یہ بھی ایک خیرات ہے۔ ہاں، خیرات ہی تو ہے۔ مانگے ہوئے اناج سے نمو پائی ہے اس جسم نے۔ نہیں، یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ جسم پرایا ہے، یہ جسم تو بھیک کا جسم ہے۔ وہ سوتے میں بڑبڑاتی اور چیخ کر اٹھتی۔ چاچا کی نیند پر تو اس کی چیخ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن چاچی جاگ اٹھتی۔ ارے کیا ہے کمبخت، کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی، ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتی۔ بی بی جی کے نخرے تو دیکھو، ایک تو پڑی مفت کے ٹکڑے توڑتی ہے اور اوپر سے یہ امیروں والی عادتیں۔ اس کے بابا کے موت کے فوراً بعد ہی چاچا چاچی نے اسے دھندے پر جانے کے لیے کہنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی اور دھندا ہوتا تو وہ اس پر ضرور جاتی، لیکن وہ تو بھیک کو بھی دھندا کہتے تھے، پھر بھلا وہ اس دھندے پر کیسے جاتی؟ چاچا فضلو اور چاچی اکبری دونوں ہی اسے غصے سے، پیار سے، نیز ہر طرح سے زیر کرنے کی کوشش کرتے۔ چاچا تو اکثر گیلی لکڑی سے دھن کر رکھ دیتا تھا۔ بھیک سے نمو پائے ہوئے جسم پر جب گیلی سوٹیاں برستی تو جسم میں آگ سی بھر جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے یہ جلن بھلی لگتی تھی۔ جب زخموں میں مرچوں کی سی جلن محسوس ہوتی تو وہ کرراہ کر کسی قدر سنگ دلی سے سوچتی، اچھا تو ہے اس بھیک کے جسم پر سوٹیاں برسے، یہ جسم آگ کی طرح سلگ اٹھے، اس کے زخموں میں مرچیں چھڑکنے کی سی جلن ہو، یہی سزا ہے اس کی۔ پچھلے زخم بھر نہیں پاتے تھے کہ خونخوار اور بھیڑیے نما چاچا فضلو کی سوٹیاں پھر شروع ہو جاتی۔ چاچی اکبری کے غصے تھے کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ الغرض انہوں نے اسے زیر کرنے کی ہر ممکنہ اور غیر ممکنہ کوشش کر ڈالی تھی، لیکن وہ تھی کہ دھان پان سی ہونے کے باوجود چٹان جیسے حوصلے کے ساتھ ہنوز اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اسے ہاتھ پھیلانا کسی صورت میں گوارا نہ تھا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں ہی بیٹھے رہنا بھی اسے پسند نہ تھا۔ یہی سوچ کر اس نے چاچا کی مخالفت کے باوجود ایک کوٹھی میں ملازمت بھی کی تھی، لیکن مالک نے اسے بری نیت سے مالا مال کرنے کی پیشکش کر دی تو اسے ہر اچھے چہرے کے پیچھے ایک مکروہ صورت نظر آنے لگی، اور 800 روپے ماہوار کی وہ ملازمت اس نے چھوڑ دی جس میں اسے اپنی انا کی، اپنی عزت کی اور اپنے وقار کی دھجیاں اڑتی نظر آتی تھی۔ چاچی کا حد سے بڑھتا ہوا اصرار اور چاچا کی قہر آلود اور خونخوار نگاہوں سے اسے اپنا وجود ڈگمگاتا نظر آ رہا تھا۔ اس روز تو چاچا کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ ارے سن کمینی، غصے کی وجہ سے اس کی آواز پہلے سے زیادہ بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ تیرے باپ کو ساری برادری نے دھتکار دیا تھا، اس پر تیری طرح محنت مزدوری کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اسی محنت نے اس کے بازو کاٹ دیے، اسے زخمی کر دیا، مر گیا بے موت محنت کے ہاتھوں۔ ارے یہ ہمارا ہی حوصلہ تھا کہ برادری کے دھتکارے ہوئے کی بیٹی کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جانتی ہے ابھی تک برادری ہم سے خوش نہیں ہے، وہ کسی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ ارے کمینی، اتنے برس سے بیٹھی نوابوں کی طرح کھا رہی ہے، اب ہم سے نہیں کھلایا جاتا۔ دھندے پر جائے گی تو روٹی ملے گی، ورنہ بھوکی مرے گی۔ چاچا، مجھ سے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا، میں پھر کہیں نوکری کی کوشش کروں گی، شاید کوئی ڈھنگ کا گھر مل جائے۔ وہ چاچا کے خوف بمشکل تمام اپنا مافل ضمیر دہرا پائی۔ ڈھنگ کا گھر، چاچا نے طنزیہ انداز میں منہ بگاڑ کر کہا۔ ارے کچھ نہیں دے سکتے کسی کو، کچھ نہیں دے سکتے یہ ڈھنگ کے گھر۔ کان کھول کر سن لے، کل سے تو دھندے پر جائے گی، میں نے تیرے لیے 10,000 میں جگہ کا سودا کیا ہے، ضائع نہیں جانے دوں گا میں اپنا پیسہ۔
तुझे धंधे पर जाना ही होगा। चाचा अपना आखिरी फैसला सुनाकर झुग्गी से बाहर निकल गया और वो भीगी आंखों से झुककर उस दरवाजे को देखती रह गई जहां से अभी चाचा गुजर कर गया था। आंसुओं की कतारें आंखों से बहती हुई उसके चेहरे को भिगो रही थी। वो घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो दी। इस तरह कई घंटे गुजर गए, हत्ता कि चाचा वापस आ गया। सुन, चेहरे पर ये रौब व जलाल नजर नहीं आना चाहिए। जब तक चेहरे पर मिस्कीनी नजर नहीं आएगी, लोग तेरे कशकोल में एक कौड़ी तक नहीं डालेंगे। चाची अकबरी ने अपनी पेशावाराना महारत का एक एक अहम गुर उसे बताते हुए कहा, क्या यही जोड़ा पहने रखेगी नवाबजादी? चल जाके अपनी चाची का कोई पुराना पेवंद लगा जोड़ा पहन। चाचा ने उसे टोका तो चाची बोल पड़ी, अरे जमाना बदल गया है, भीख मांगने के अंदाज बदल गए हैं। तू तो निरा घामड़ का घामड़ ही रहेगा। चाची हाथ नचाती हुई बोली, अच्छा तो है ये इन कपड़ों में मांगे, बल्कि इसे तो और भी अच्छे कपड़े सिलवा कर देंगे। कुछ ढंग की नजर आएगी तो कुछ मिलेगा। लोग तो हर चीज में खूबसूरती ढूंढते हैं, यहाँ तक कि भिखारन में भी हुस्न चाहिए लोगों को। अच्छा अच्छा, ज्यादा जबान मत चलाया कर और वहाँ जगह दिखा देना उसे। बहुत मौके की जगह है। कमबख्त बड़ी मुश्किल से 10,000 पर राजी हुआ। अरे वो तो 20,000 मांग रहा था। फुटपाथ भी तो बड़ी अच्छी जगह पर है। और तूने देखा अकबरी, वहां से टटपुंजी लोग नहीं गुजरते, एक से एक बड़ा आदमी गुजरता है। भला ये क्या बात हुई? क्या छोटे आदमियों का वहां से गुजरना मना है? चाची ने ताज्जुब से इस्तिफसार किया। अरे बेवकूफ, वहाँ छोटे लोगों का क्या काम? आगे का सारा इलाका साइट का इलाका है। मजदूरों के अलावा किसी छोटे आदमी का भला वहाँ क्या काम? पश्चिम की तरफ 10-12 फैक्ट्रियां हैं, सारे बड़े आदमी वहां से गुजरते हैं। और सुन, चाचा ने हमीदा से तंबीह के अंदाज में कहा, खड़ी मुंह ना देखती रहना, मुंह खोलकर मांग लेना। 150-200 से कम लाई तो इस झुग्गी में कदम नहीं रखने दूंगा। अगर खाली हाथ आई तो चुटिया पकड़कर निकाल बाहर करूंगा। चाचा ने अपने जोरदार दांतों को बाहम भींचकर कहा तो वह सहम कर चाची की ओट में हो गई। फुटपाथ से 2 सड़कें मिलती थी। तीसरी तरफ उस फुटपाथ से 7-8 कदमों के फासले पर पार्किंग एरिया था, जहां हर रंग की और हर नए और पुराने मॉडल की गाड़ियां रुकती थी। एक तरफ आइसक्रीम और छोले की रेहड़ियां लगी थी। लोग अपनी खूबसूरत गाड़ियों की आरामदायक नशिस्तों पर टेक लगाए आइसक्रीम और छोलों का ऑर्डर देते और वहीं बैठे बैठे चटखारे लेते हुए खाते और बिल अदा करके अपनी मंजिल की तरफ चल देते। न जाने कब तक वो कशकोल को अपनी बड़ी सी चादर में छुपाए ये मंजर देखती रही। वो खुद में हिम्मत नहीं पा रही थी कि कशकोल को चादर में से निकाल कर लोगों के सामने कर दे। वो बेबसी से चारों तरफ देख रही थी। आते जाते लोगों की नजरें उसके सरापे का तवाफ कर रही थी। अगरचे उसने चादर को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट रखा था, फिर भी उसे वो नजरें अपने जिस्म के आर पार महसूस हो रही थी। वो बदस्तूर कशकोल को अपनी चादर में छुपाए खड़ी थी। वो हर तरह से बेबस और लाचार थी। चाचा की झुग्गी के अलावा और कोई ठिकाना भी तो ना था। मौसम खराब हो रहा था, हर सू हिब्स फैला था। बारिश हो जाती तो कुछ हवा भी चलती। बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। किसी पल भी शदीद बारिश शुरू हो सकती थी। चाची अभी तक उसे लेने नहीं आई थी। उसकी परेशानी लम्हा बलम्हा दो चंद होती जा रही थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। तेज हवा के झक्कड़ चलना शुरू हो गए। वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई। उसने अपने गिर्द लिपटी हुई चादर की गिरफ्त को और मजबूती से पकड़ लिया, मुबादा कि वो उस तंद हवा में कहीं उड़ ही न जाए। वो परेशानी से आती जाती गाड़ियों को देखती रही। मान उसे अपने करीब सड़क पर एक गाड़ी रुकती हुई दिखाई दी। वो हैरत से उसे देखने लगी। वो उसी की तरफ आ रहा था। मोहतरमा, मौसम खराब हो रहा है और आप अभी तक इस जगह पर खड़ी हैं। आखिर किसका इंतजार है आपको? वो करीब आते ही बोल पड़ा। चेहरे मेहरे से वो कोई मुअज़्ज़िज़ आदमी नजर आ रहा था। वो दोनों हाथों को पतलून की जेबों में ठूंसे उसी की जानिब देख रहा था। जी मैं समझी नहीं, वो कदरे हैरान होकर बोली।
समझा तो मैं भी नहीं, आखिर आप हैं क्या चीज़। मैं फैक्ट्री जा रहा था तब भी आप बिल्कुल इसी तरह बुत बनी एक जगह खड़ी थी, अब आ रहा हूँ तो उसी तरह नजर आ रही हैं। वो टिश्यू पेपर से अपना चेहरा थपथपाता हुआ बोला, यकीन कीजिए थोड़ी देर पहले तो मैं आपको स्टैचू ही समझा था। वो गैर संजीदगी से गोया हुआ तो हैरत से आंखें टमटमाते हुए बोली, मुझे दरअसल अपनी चची का इंतज़ार है। हैरत है, आपकी चाची अभी तक नहीं लौटी हैं। इसने अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। ओफ, ये तो प्रॉब्लम हो गई, आप यहाँ खड़े खड़े बारिश में भीग जाएंगी। आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। उसने पेशकश की तो वो कदर तामुल से अपने होठों को बाहम भींचने लगी। मैं एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, उसने हमीदा के चेहरे को देखकर कहा। ये मेरा कार्ड है। उसने अपने कोट के बालाई जेब से एक खूबसूरत कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा। वो कार्ड थामकर उसे पढ़े बगैर ही गाड़ी में बैठ गई। उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था और ये शख्स उसे मुअज़्ज़ज़ लग रहा था। खुदा करे उसका दिल भी उसके चेहरे ही की तरह हो, उसने दुआ की। उसके बैठते ही वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। किस तरफ चलना है? उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हुए कहा, दाएं तरफ मुड़ जाए। उसने रास्ता बताया। जो ही उसकी नज़र हाथ में पड़े हुए कार्ड पर पड़ी, वो अपनी जगह ठिठक कर रह गई। गाड़ी रोक दो। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या बात है, आपने गाड़ी क्यों रुकवा दी? मैं तुम्हारी गाड़ी में हरगिज़ नहीं बैठ सकती। वो एकदम से आप से तुम पर आ गई। लेकिन क्यों? उसने एहतजाज किया। यह अचानक आपको क्या हो गया? इसलिए कि मुझे मालूम हो गया है कि तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? उसने हैरत से इस्तिफसार किया। बताती क्यों नहीं आप कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे बाबा के कातिल हो। हाँ, तुम कातिल हो मेरे बाबा के। तुमने उनका कत्ल कर दिया। ये क्या बकवास है? वो गुस्से और हैरत से बोला। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? ना ही ये बकवास है और ना ही मैं पागल हूँ। मेरे बाबा तुम्हारी फैक्ट्री में काम करते हुए शदीद जख्मी हो गए थे। फैक्ट्री के बड़ों ने उसे उनकी अपनी गलती बताकर इलाज व मुआवजे की रकम अपने जिम्मे ठहराने से इनकार कर दिया। वो बहुत ज़्यादा जख्मी थे और उन्हें फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत थी। फिर? उसने कदरे इस्तराब और हैरत से पूछा। फिर वो मौत की पुरसुकून वादी तक पहुँच गए, मुझे इस जहन्नम में छोड़कर। वो तल्खी से बोली। मुझे ये सुनकर दुख हुआ है। हाँ, लेकिन अब तुम कैसे गुज़र औकात करती हो? गुज़र औकात, वो तल्खी से बोली। मैंने ये 6 बरस चाचा के साथ जिस अज़ाब में गुजारे हैं, उसका बदला तो शायद तुमसे खुदा ही लेगा। वो नफरत से होठ सुपोड़ते हुए बोली। हर लम्हे जीती और मरती रही हूँ। ये देखो, ये है हमारी गुज़र औकात। उसने अपनी चादर से कशकोल निकालकर उसके सामने कर दिया, जिसे देखकर वो एकदम सरपटा गया। यकीन करो, मुझे इस वाक़े का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैं तो हाल ही में अमेरिका से लौटा हूँ और गुज़िश्ता 10 बरस से वहीं पर मुकीम था। तालीम मुकम्मल करके अभी आया हूँ। तुम्हारी ज़ुबानी ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि मैं तो ख़ुद को भी मुजरिम समझ रहा हूँ। जिस फैक्ट्री ने तुम्हारी बाबा की जान ली, वो मेरी मिल्कियत है। 10 बरस पहले मैं अमेरिका गया था। चूँकि मेरे वालिद का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, इसलिए सारा बिजनेस और फैक्ट्रियाँ मेरे दूर के एक चाचा संभालते हैं। लगता है सब इन्हीं का किया धरा है, लेकिन फिर भी मैं खुद को मुजरिम तस्वुर कर रहा हूँ। छोड़ो इन बातों को। जब तुम मुजरिम हो ही नहीं तो खुद को कसूरवार क्यों ठहराते हो? उसका चेहरा किसी किस्म के तासुर से आरी था। बहरहाल, मैं इस मामले की सख्ती से इंक्वायरी करवाऊंगा। वो दस्तूर पैकर निदामत बना खड़ा था। तुमने भीख मांगना कैसे गवारा कर लिया? तुम तो एक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की हो। तुम कोई मुलाजमत भी तो कर सकती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ मिडिल तक पढ़ा है। शायद मेरी तालीम ही मुझे अब तक हाथ फैलाने से रोकती रही है। बावजूद कोशिश के भी मैं लोगों के सामने ये कशकोल ना फैला सकी, बल्कि मुझे खौफ रहा कि कहीं मुझे कोई भिखारन ना समझ ले। इसीलिए मैंने कशकोल को अपनी चादर में छुपा रखा था। मुलाजिमत भी करके देखी, लेकिन लोग किसी तरह भी जीने नहीं देते। क्या तुम्हारा ये पहला दिन था?
उसका इशारा भीख मांगने की तरफ था। हाँ, जिंदगी में पहली बार ये कशकोल थामे इस दौराहे पर खड़ी थी। उसकी आंखें भीग गई। आज अगर मेरे मामू जिंदा होते तो शायद बाबा की मौत के बाद मुझे यूं दर बदर ना होना पड़ता। क्या तुम्हारे मामू भी मजदूरी करते थे? हाँ, मेहनत मजदूरी ही समझ ले। वो लोगों के पुराने और टूटे फूटे जूते बनाते थे और उन जूतों को इतना खूबसूरत बना देते थे कि यकीन करना मुश्किल होता कि जूता नया है या पुराना। जानते हो, एक दिन उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया था। क्या किया था उन्होंने मेरे बाबा को मेहनत का दर्स दिया था। मेरे बाबा भी अपनी बिरादरी के दूसरे लोगों की तरह भीख मांगते थे। ये हमारा खानदानी पेशा रहा है। फिर एक रोज़ बाबा की मुलाकात मामू से हो गई और फिर कुछ ही रोज़ में उनकी गहरी दोस्ती हो गई। मामू को बाबा का काम बिल्कुल पसंद ना था। उन्होंने बाबा को मेहनत पर मजबूर किया और बाबा मान गए, लेकिन मेरे दादा और बिरादरी के लोगों ने उन्हें इस जुर्म में बिरादरी से निकाल बाहर किया। बाबा अपनी अलग थलग दुनिया में बहुत खुश थे। मामू ने बाबा से अपनी बहन का ब्याह कर दिया। फिर 1 साल बाद जब मैं पैदा हुई तो माँ चल बसी और बाबा तन्हा रह गए। मैं बेटी थी, लेकिन बाबा ने मेरी परवरिश बेटों की तरह की। मुझे मिडिल तक तालीम दिलवाई। वो मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे घरेलू हालात ने इजाज़त नहीं दी। बाबा चल बसे और मुझे मेरा भेड़िया नुमा चाचा अपने पास ले आया। 6 बरस से भीख के दाने पर गुजारा कर रही हूँ। कभी कभी तो अपने वजूद से नफरत होने लगती है। भला ये भी कोई जिंदगी है? ऊपर से चाचा चाची के ताने सुनने को मिलते हैं। गीली लकड़ियों से मार मार कर चाचा मेरी खाल उधेड़ डालता है। चाचा के जुल्म से मजबूर होकर मैं हाथ फैलाने के लिए यहाँ आ गई, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मैं किसी के सामने हाथ ना फैला सकी। घर से निकलते वक्त चाचा ने कहा था, कमजात, अगर 100-150 से कम लाई तो घर में घुसने नहीं दूंगा। ये सब वाकयात सुनाकर वो फूट फूट कर रो दी। देखो लोग क्या सोचेंगे, खामोश हो जाओ, प्लीज आंसू पोंछ लो। उसने पैकेट से एक टिश्यू पेपर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। फिलहाल तुम ये 300 रुपये रखो और अपने चाचा को दे देना। नहीं, मैं ये पैसे नहीं लूँगी, मैं इसे भी भीख समझती हूँ। वो आंसू खुश्क करती हुई बोली, ये भीख नहीं बल्कि तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। समझो, उसी कर्ज की एक छोटी सी किस्त अदा कर रहा हूँ। उसने ज़बरदस्ती रुपए उसकी मुट्ठी में दबा दिए और बोला, मैं तुम्हारे लिए कहीं मुलाजिमत की जगह निकाल लूँगा, लेकिन मुलाजिमत के रुपयों से मेरे चाचा का पेट नहीं भर सकता। भिखारियों को बेहिसाब चाहिए होता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी यही मजबूरी रही होगी, वरना तुम इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाली हरगिज नहीं हो। लेकिन फिर भी तुम बेफिक्र रहो, तुम कल फिर इसी जगह आना, मैं तुम्हें यही मिलूँगा। मैं कुछ ही रोज़ में तुम्हारे लिए कोई ना कोई हल ज़रूर सोच लूँगा। आखिर किस हैसियत से तुम मेरे लिए ये सब करोगे? एक मकरूज की हैसियत से। वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अगरचे तुम्हारा कर्ज इतना बड़ा और ज़्यादा है कि मैं ज़िंदगी भर भी अदा करता रहूं तो अदा ना हो, फिर भी मैं तुम्हें इस दलदल में हरगिज़ नहीं धंसने दूंगा। वो फैसला कुन अंदाज में बोला और उसने बताए हुए रास्ते पर गाड़ी का रुख मोड़ दिया। चाचा ने हाथों में 3 सुर्ख नोट थाम कर भी उससे ये नहीं पूछा कि वो किस तरह घर पहुंची। तेज बारिश में उसे घर तक किसने छोड़ा? वो तो नोटों को देखकर दीवाना सा हो गया था। फिर यकलख्त ही वो नोटों को गौर से देखता हुआ संजीदा हो गया। वो घूमकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपनी सुर्ख आंखें निकालते हुए कहा, ये नोट कहाँ से आ गए तेरे पास? क्या आजकल भीख में 100 के नोट मिलने लगे हैं? उसने सोचा भी ना था कि चाचा उससे ये सवाल भी कर सकता है। वो जल्दी से बात बनाते हुए बोली, वो आइसक्रीम की रेडी है ना, वहाँ मैंने तमाम टूटे पैसे देकर उससे ये नोट भी ले लिए थे। उसकी बात सुनकर चाचा मुतमईन हो गया और बोला, देख मूर्ख, अगर तू 6 बरस पहले ये काम शुरू कर देती तो आज ये झुग्गी नोटों से भरी होती। तेरी चाची इतनी रहमदिल ना होती तो मैं पहले ही तुझसे सख्ती से पेश आता। चाचा की जुबानी चाची का जिक्र सुनकर उसे अचानक चाची याद आई। हाँ चाचा, वो चाची नहीं आई अभी तक? शाम ढल गई है और तूने अभी तक चाची का पता नहीं किया? वो चाचा को खामोश देखकर बोलती चली गई, लेकिन चाचा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया।
उसका खूंखार चेहरा सपाट ही रहा। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, वो फिर बोली। सुना नहीं तूने? वो अभी तक घर नहीं लौटी। उसने चाचा को बदस्तूर खामोश देखकर अपना सवाल दोहराया तो चाचा ने उसकी जानिब से अपना मुंह फेर लिया। तेरी चाची अब कभी घर नहीं आ सकेगी, वो बोला। ये क्या कह रहा है तू? उसे शदीद झटका लगा। ठीक कह रहा हूँ, वो भली औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? क्या चाची मर गई? हाँ, कह दिया जो कह दिया, मर गई। उसे नजर जो कम आता था, इसीलिए आज सुबह एक गाड़ी से टकरा गई। किसी ने चाची को मार डाला? वो तकरीबन रो दी। वो खुद को यकीन दिलाने के अंदाज में बोली, चाची मर गई? हाँ मर गई, लेकिन क्या तूने इस गाड़ी वाले को छोड़ दिया? उसे तो वहां पर मौजूद लोगों ने ही पकड़ लिया था। उसने जानबूझकर तेरी चाची को नहीं मारा था, बस इत्तेफाक से ये हादसा हो गया। उस शख्स ने मुझे बाद में ये सब बताया। और तूने उसकी बात पर यकीन कर लिया? तो क्या करता? उसे तेरी चाची से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो गुस्से से दहाड़ा। मैं वाक़े पर मौजूद तो नहीं था, बिरादरी के ही एक बंदे की इत्ला पर वहां पहुंचा था। फिर भी वो शरीफ आदमी था, मैंने उसे जेल के चक्करों से बचा दिया। ये क्या कह रहा है तू? वो बदस्तूर मुजस्समे हैरत बनी खड़ी थी। ठीक कह रहा हूँ, और ये देख, उसने ये 50,000 की रकम भी दी है। उसने अपने तकिए के करीब रखी एक मैली सी पोटली की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, तो अब समझ रही हूँ कि वो किस तरह चाची की जान लेने के बावजूद भी शरीफ रहा। चाचा को उससे इस बात की तवक्का नहीं थी। उसने कहर आलूद निगाह हमीदा पर डाली और बोला, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ कह। साफ साफ बात यह है कि चाची की जान की कीमत 50,000 रुपए है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू इंसानियत के मुकाम से इतना भी गिर सकता है। मुझे आखिरी बार उसकी सूरत तो देख लेने देते। वो चीख कर बोली और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। कुछ ही देर में चाचा का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा तो वो अपनी जगह साकित व सामित रह गई। बकवास बंद कर कमजात, उसे मैंने कफन दफन का इंतजाम करके वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया है। तेरे लिए उसे यहाँ लाता? देखते ही देखते झुग्गी के दरो दीवार उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फजलू चाचा ने रुपयों की पोटली संदूक में छुपाकर एक कहर आलूद निगाह उसके साकित जिस्म पर डाली और सफाकी से बेहोश फर्श पर गिरी हमीदा को एक ठोकर रसीद करता वहां झुग्गी से बाहर निकल गया। होश आया तो जोर जोर दर्द कर रहा था। आसाब बुरी तरह से चटक रहे थे। वो गमो यास की तस्वीर बनी बैठी थी। चाची अकबरी का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने घूम रहा था। इन ख्यालों को झटकने के बावजूद भी वो इस किस्म के ख्यालों से पीछा छुड़ाने में नाकाम रही थी। उसमें 2 कदम चलने की भी सकत ना थी। फिर भला वो फुटपाथ तक कैसे जा सकती थी? उसने सुबह सवेरे चाचा के सामने अपनी मजबूरी बयान की तो वो खिलाफ तवक्का बोला, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद तुझे आज धंधे पर जाने से रोकने वाला था। उसने नरमी से कहा तो वो देखती रह गई। क्यों? मेरा मतलब है कोई खास बात है क्या? उसने वजह पूछी तो चाचा कदर तामुल से बोला, वो एक मेहमान आने वाला है आज हमारे घर। मेहमान? उसने हैरत से इस्तिफसार किया। हाँ, मेहमान ही कहा है मैंने, लेकिन तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? चाचा ने जवाबन सवाल कर दिया। इसलिए कि आज तक मैंने इस घर में कोई मेहमान आते कभी नहीं देखा। वो चाचा को टटोलती हुई नजरों से देख रही थी। भला हम भिखारियों के घर कौन मेहमान आएगा? तू तो बिल्कुल बावली है। अच्छा, तुझे मेरी बात का यकीन नहीं आता ना? तो खुद ही देख लेना जब वो आए। चाचा के लहजे में अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई? कहीं ये कोई मुआवजा तो नहीं? फजलू ने अपने मेहमान को झुग्गी के कुछ फासले पर एक पेड़ के नीचे बिठा दिया था। ये महज इत्तेफाक ही था कि वो चाचा के मेहमान के लिए चाय बनाने के लिए झुग्गी के एक जानिब बनी हुई कांटों की बाड़ में रखी हुई लकड़ियां लेने गई थी कि हवा के दोष पर चाचा के मेहमान और चाचा के बात करने की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। देखो जानू, तुम्हें मेरी एक शर्त जरूर माननी पड़ेगी। ये चाचा की आवाज़ थी। बोलो, क्या शर्त है?
मैं बुरा आदमी जरूर हूँ, लेकिन वो मेरी भतीजी है और एक शरीफ बाप की बेटी है, इसलिए तुम्हें उससे निकाह करना होगा। मैं निकाह के बगैर उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। अरे निकाह तुम उसका 10-12 बार कर देना हमसे, हमें मंजूर है। ये सुनते ही उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। मेरे खुदाया, उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो खुद को बमुश्किल संभाल पाई थी। पांव थे कि मन भर के हो गए थे। उसके लिए चलना दुश्वार हो गया था। पहले चाची की यूं अचानक मौत का गम ही क्या कम था कि अब नई मुसीबत सर पर आन पड़ी। वो लकड़ियां लिए बगैर झुग्गी में वापस आ गई। हमीदा तेरा ही नाम है ना? उसे अपने अकब से आवाज आई तो उसने पलटकर देखा। चाचा का वही मेहमान सामने खड़ा अपने जर्द दांतों की नुमाइश कर रहा था। उसने कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए कहा, हाँ मेरा ही नाम है, तू कहे तो तेरा रख दूं। वो एक जोरदार कहकहा लगाता हुआ बोला, अरे वाह, भिकारन पर जलाल देखो, क्या मलका लग रही है। मुझे तो हैरत है कि तुम लोगों के सामने हाथ कैसे फैलाती होगी। तुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो गुस्से की शिद्दत को बमुश्किल तमाम काबू रख सकी। मतलब का भी पता चल जाएगा तुझे। वैसे तेरा ये अंदाज हमें पसंद आया। अरे गुस्से में तो तू और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मैं कहती हूँ अपनी गंदी सूरत लेकर दफा हो जाए यहाँ से। इस पर हमीदा की बात का कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर कह लगा रहा था, अरे अब तो मैं तेरे बारे में और संजीदा हो गया हूँ। तुझे नोटों की गड्डी में तोल कर ब्याह ले जाऊंगा। तू अगर एक पलड़े में अपना सर भी काट कर रख देना, तब भी वो पलड़ा मेरे बराबर ना होगा। मैं थूकती हूँ तुझ पर, जा दफा हो जा मनहूस। वो गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह कांप रही थी और वो उसके गुस्से से महसूस हो रहा था। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन फिर आने के लिए। वो मायने खेज अंदाज में हंसता हुआ बोला और झुग्गी से बाहर निकल गया। सुबह वो फुटपाथ पर खड़ी उसकी राह देख रही थी, लेकिन अभी तक उसका गुजर नहीं हुआ था। ये भी तो मुमकिन है कि कल मुझे यहाँ ना पाकर आज वो यहाँ से गुजरे ही ना। वो सोच रही थी, लेकिन नहीं, वो तो हर रोज यहाँ से गुजरता है। उसकी फैक्ट्री जो है यहाँ। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई। सारी दुनिया में एक वही तो था जिसका वो सहारा महसूस कर रही थी। उसकी जात किस कदर सुकून का बाज थी कि वो ना चाहते हुए भी उससे सहारे की भीख ले रही थी। रोज रोज हाथ फैलाने और बेइज्जत होने से अच्छा है किसी से एक ही बार भीख ले ली जाए। अब तो इसने यही सोच लिया था और मुतमईन हो गई थी। वो अपनी मशहूर कुन शख्सियत के साथ अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर विराजमान था। जो ही हमीदा पर उसकी नजर पड़ी, उसकी आंखों में एक चमक सी ऊद कर आई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। और हाँ, कल क्यों नहीं आई थी? उसने आते ही इस्तिफसार किया। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुश्किल? कैसी मुश्किल में हो? तुम मेरे चचा को समझा दो। खुदा की कसम, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो गिड़गिड़ाई। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है? चाचा मुझे एक बदकिरदार आदमी के हाथों फरोख्त कर रहा है। उसने रकम भी तय कर ली है। वो कल खुद भी आया था। ऐसे में तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसने पूरी बात सुनकर एक हुंकार भरते हुए कहा, तो ये बात है। वो सोचता हुआ बोला, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर लूंगा। उसकी जबान से ये अल्फाज बेसाख्ता निकले तो वो कुछ मुतमईन नजर आने लगी। वो उसके साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उसकी गाड़ी में आ बैठी। आइसक्रीम मंगवाऊं? उसने पूछा तो हमीदा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा खाने पीने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं है? कह जो दिया कि मसला मैं जल्द हल कर लूंगा। पर कब तक? उसने कदरे इस्तराब से पूछा। चाचा तो मेरा उसके साथ कल ही निकाह करने वाला है। क्या? कल निकाह? यानी इतनी जल्दी? वो बमुश्किल तमाम कह पाया, हाँ, अगर कुछ कर सकते हो तो आज ही करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने अश्कबार आंखों से उसकी जानिब देखा तो उसकी नजरें भी अपने चेहरे पर मरकूज पाई। तुम्हारे चाचा कितने बजे घर लौटते हैं? उसने पूछा। वो शाम को 7 बजे घर आता है। उसने नजरें झुकाकर जवाब दिया। ठीक है, मैं आज शाम 7 बजे पहुंच जाऊंगा। उसने गहरी सोच विचार के बाद किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा और वो खुश नजर आने लगी।
अब तुम मेरे घर चलो और वहाँ नहा धोकर कोई अच्छा सा लिबास पहनना, फिर हम शाम को साथ में झुग्गी चलेंगे। वो इनकार करना चाहती थी लेकिन कर ना सकी। जो ही उसने उस शानदार कोठी में कदम रखा वो ठिठक कर रह गई। उससे खूबसूरत कोठी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो जूते बाहर उतारने लगी तो उसने मना कर दिया। वो जूतों समेत दबी इस कालीन पर धीरे धीरे पांव धरती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो एक फैशनेबल लड़की थी जिसके तराशीदा बाल उसके शानों पर झूल रहे थे। वालेकुम अस्सलाम मिस रूबी, उसने बावकार अंदाज में कहा। ये मिस हमीदा हैं, शाम तक यहीं ठहरेंगी। इनके लिए चंद खूबसूरत और आला मलबूसात का इंतजाम कीजिए और इन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाइए। ओके सर। फिर वो हमीदा की तरफ मुतवज्जा हुई। आइए मिस हमीदा। हमीदा ब्यूटी पार्लर का नाम सुनकर घबरा गई थी तो वो उसे एक जानिब ले जाकर बोला, घबराओ मत, ये सब तुम्हारे मसले का हल है। क्या तुम नहीं चाहती कि इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करो? उसने जवाबन अज़बात में सर हिला दिया और इस लड़की के साथ चल दी। ब्यूटिशनर ने उस पर खूब मेहनत की। वो आईना देखकर हैरान रह गई। उसकी खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखें हैरत से मजीद फैल गई। क्या वाकई ये मैं ही हूँ? उसे बड़ी मुश्किल से यकीन आया। वो बार बार खुद को छू कर देख रही थी। जब उससे सामना हुआ तो वो देखता ही रह गया। उसकी नजरों की ताब ना लाकर वो खुद में सिमट रही थी। दफतन फोन की घंटी ने तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। वो उसकी जानिब से रुख मोड़कर रिसीवर उठाने को लपका तो उसकी जान में जान आई। वो फोन सुनते ही फौरन उससे मुखातिब हुआ, आओ चले, गाड़ी तैयार है। वो खामोशी से उसके साथ गाड़ी में आ बैठी। फजलू चाचा उसे देखकर अपनी जगह ठिठक कर रह गया। वो बार बार आंखें मल मल कर उसको उस अनोखे रूप में देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही हमीदा है जो सुबह तक फटे पुराने कपड़ों में थी और अब किसी शहजादी की तरह उसके सामने जलवागर थी। फजलू तुम्हारा ही नाम है? उसने फजलू चाचा को बगौर देखते हुए इस्तफसार किया। हाँ, मैं ही फजलू हूँ। तो तुम हो वो ज़मीर फरोश जो अपने मरहूम भाई की बेटी को फरोख्त कर रहे हो? हाँ, लेकिन ये हमारा ज़ाती मामला है और मैं इसे फरोख्त नहीं कर रहा हूँ बल्कि जानू से इसका निकाह पढ़ाना चाहता हूँ। ज़बान संभाल कर बात करो तुम। इसका निकाह किसी जानू के साथ नहीं कर सकते। वो रौबदार आवाज़ में गोया हुआ। क्यों? तुम कौन होते हो हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले? चाचा गुस्से से फुकारा। कह दिया जो कह दिया, तुम इसका निकाह किसी के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं इसका निकाह जानू से जरूर करूंगा और देखता हूँ मुझे ऐसा करने से कौन रोकता है। चाचा के जवाब पर वो सहम कर उसकी जानिब देखने लगी। क्या कानून में एक शौहर के जिंदा होते हुए दूसरे निकाह की इजाजत है? उसके सवाल पर फजलू सटपटा कर उसकी जानिब देखने लगा। वो भी कुछ ना समझते हुए सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। ये मेरी बीवी है, यकायक उसकी जबान से निकला तो फजलू के साथ हमीदा को भी हैरत का एक जोरदार झटका सा लगा। एक शादीशुदा औरत का दोबारा निकाह जायज नहीं है, ये कहते हुए वो उसका हाथ थाम कर चल दिया। फजलू हैरत और गुस्से से उसे उसके साथ जाते हुए देखता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए पूछा। मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने दो टोक जवाब दिया। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने एहतजाज किया। कहाँ मैं, कहाँ तुम? मैं एक भिखारन हूँ और तुम इतने बड़े आदमी। वो जल्दी से बोली। तुम भिखारन नहीं हो इसलिए कि तुमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। खबरदार जो आइंदा खुद के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो प्यार से डांटता हुआ बोला तो वो उसका मुंह देखती रह गई।